માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કેન્દ્રીય સહમંત્રી ધર્મ પ્રચાર ધર્મેન્દ્રભાઈ ભાવાણી આપણી વચ્ચે આજે ઉપસ્થિત છે। એમનું સન્માન માટે જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। હજી ઓછું પડે છે ભાઈ। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ ની સામે આપે જય જય શ્રી રામ નો ઉદ્ઘોષ કરવાનો છે। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। ત્યારબાદ વિપુલભાઈ અગ્રાવત બજરંગ દળ પ્રાંત સહસંયોજક આપણી વચ્ચે હોય, એમના સન્માન માટે હું અરવિંદભાઈ જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। બહેનોને વિનંતી છે, આપણે ધર્મસભામાં આજે જે રાધાકૃષ્ણ મંદિરના પૂજારી એમનું સ્વાગત કરશે ભાવેશભાઈ ગોહિલ। શ્રી રામ। આપણા સરપંચશ્રીનું સ્વાગત કરશે દિલીપભાઈ। બે શબ્દ આપશે। જય શ્રી રામ। હું તો યાત્રામાં લગભગ થાકી લાગ્યો હોય છે એવું લાગે છે બધાને, પણ આજના આપણા હિન્દુ સમાજના ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી રામનો પ્રાગટ્ય દિવસ અને એ નિમિત્તે આજે જેસર ગામમાં શોભાયાત્રા, ત્યારબાદની આ ધર્મસભાની અંદર ઉપસ્થિત પૂજ્ય સંતોના શ્રી ચરણોમાં વંદન, ત્યારબાદ આજની સભાના આપણા મુખ્ય વક્તા અને જેને હું મારા મનથી ગુરુ માનું છું એવા ધર્મેન્દ્રભાઈ, તેમજ મારી સાથે પ્રાંતના બજરંગ દળના સહસંયોજક વિપુલભાઈ, તેમજ આપ સૌ નીચે બેસેલા વડીલો, માતાઓ, બહેનો, જેમ હમણાં ભાઈએ કીધું એમ કે ધર્મેન્દ્રભાઈને સાંભળવા પણ એક લાવો છે। ખરેખર હું પણ એમને સાંભળવા માટે જ આવ્યો। હું અહીં તમારી બાજુમાંથી જ છું, તળાજાનો જ વતની છું, પણ એમને જ્યારે જ્યારે આ બાજુ ધર્મેન્દ્રભાઈની કંઈ સભાઓ હોય ત્યારે ખરેખર હું પણ સાંભળવા જતો હોઉં છું। તો એના માટે થઈને આજે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ। આજની આ સભામાં એમને આપણે સાંભળી અને એમાંથી કંઈક શીખ લઈ અને આપણે આપણા જીવનમાં પણ ઉતારીએ, કે નહીં કે ફક્ત આપણે સાંભળીને અહીંથી આપણે ઘેરે જઈને તરત ભૂલી જઈએ। ખરેખર હિન્દુ સમાજ માટે આપણે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક પૈસા પાછળ, ધંધા પાછળ ને ક્યાંક આંધળી દોટ મૂકી એમાં આપણી સંસ્કૃતિ ને સંસ્કાર ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલ્યા છીએ। આપણા ધર્મનું આપણું જે કર્તવ્ય છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ભૂલતા હોઈએ છીએ। તો આજે આવા જે કાર્યક્રમો થકી ફરીવાર આપણા સંસ્કારો, સંસ્કૃતિ ઉજાગર થાય અને એની સાથે જોડાયેલા રહી એવા એ માટે આપણા કાર્યક્રમો થતા હોય છે। તો આપણે બધાએ આજના કાર્યક્રમમાં ખરેખર આપણે ધર્મેન્દ્રભાઈને સાંભળવાના છે અને આપણો બીજો એક તો અમથો કાર્યક્રમ લેટ છે અને વધારે લેટ નહીં કરતા હું ધર્મેન્દ્રભાઈને જ કહીશ કે આપ પણ અમને માર્ગદર્શન કરો। જય શ્રી રામ। सच्चिदानंद भगवान की भारत माता की रामचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की सनातन धर्म की सनातन धर्म की सनातन धर्म की हिंदू समाज की हिंदू समाज की महाराणा प्रताप की वीर छत्रसाल की छत्रपति शिवाजी महाराज की
लाचित बड़ फुकन की, कृष्ण देव राय की, हर 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 महादेव। आज के यह पवित्र शुभ दिन पर अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के पवित्र कार्यक्रम में मंचस्थ विराजमान बजरंग दल सौराष्ट्र प्रांत का काम देखने वाले लाखा भाई, विपुल भाई, सम्मानीय मंच, यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अरविंद भाई, वीरा भाई, सभी मेरे हिंदू साथी एवं यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों के हृदय पटल पर विराजमान अखिल ब्रह्मांड के प्रभु श्री राम को मैं नमन करता हूं। मेरे बंधुओं, सृष्टि के प्रारंभ से ही भारत दुनिया को ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाला देश रहा है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह भारत दुनिया को शौर्य प्रदान करने वाला देश रहा है। यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, यह भूमि अवतारों की भूमि है, ऋषि महर्षियों की भूमि है, यह भूमि वीर धर्म योद्धाओं की भूमि है। भारत केवल भारत नहीं, भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, हम हिंदुओं के लिए स्वयं जगदम्बा का स्वरूप मेरी भारत माता है। मेरी यही जगदम्बा भारत ने सृष्टि के प्रारंभ में शिव शक्ति का प्रादुर्भाव किया था। मेरे यही जगदम्बा मां भारती ने भगवान विष्णु के सभी अवतारों को अपनी गोद में पैदा किया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के दिन हम कहते हैं जो हर जगह व्याप्त है वह मेरा राम है। राम के बिना कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां मेरा राम न हो। ऐसे मेरे अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतरण आज के दिन हुआ था। हम आज तक 9,40,000 साल के बाद भी मेरे राम के जन्म को नहीं भूले। पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव मना रहा है। मेरे बंधुओं, क्या थे राम? राम केवल भगवान नहीं थे। प्रभु श्री राम भारत देश के लिए राष्ट्र पुरुष थे। रामायण में से हमारा परिवार किस प्रकार का होना चाहिए, परिवार में व्यक्ति का त्याग कैसा होना चाहिए, अगर रामायण में राम जी और मेरे भरत का संवाद जो कोई समझ लेगा तो दो भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होगा। सीता जी उर्मिला और मांडली का संवाद समझ लेगा तो देश और दुनिया में कोई देरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होगा। दशरथ और राम का त्याग समझ लेगा तो कोई बाप बेटे में झगड़ा नहीं होगा। राम जी का जीवन, राम जी का परिवार यानी त्याग और तपस्या है। मेरे बंधुओं, इसलिए हमने कहा कि रोम रोम में राम है। इस राम जी के देश में
प्रभु श्री राम ने हमें परिवार व्यवस्था प्रस्तापित करके दी थी, सामाजिक व्यवस्था प्रस्तापित करके दी थी, सभी प्रकार की वैचारिक क्रांति खड़ी की थी। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, आज इस देश में तब एक सीता हरी गई, हमने लंका हनुमान बनके जला दी थी, आज मेरी लाखों सीता हरी जाती है। और यह आतोताई लव जिहाद के आधार पर मेरी बहनों को 2-2 दिनार में बेचने का काम करते हैं। इसलिए केवल राम का जन्म महोत्सव मनाने से यह बात सार्थक नहीं होगी जब तक इन लव जिहादियों को भूमि में नहीं गाड़ देंगे, तब तक हम राम भक्त नहीं कहला सकते। मेरे बंधुओं, इसी राम जी के देश में धर्म लूटा जा रहा है। यही राम जी के देश में सरेआम मेरी गाय माता की हत्या होती है। यही राम जी के देश में आए दिन मंदिर टूटते हैं। यही राम जी के देश में हिंदू मान चिन्हों पर, सनातन पर घात हो रहा है। इसलिए मैं कहने आया हूं, मेरी माताओं, मेरी बंधुओं, हमें सोचना होगा राम का देश कैसा हो। हमें सोचना होगा हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। इसलिए हमें संकल्प के साथ खड़ा होना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर। मेरे राम भी सबरी की झोपड़ी पर जाकर झूठे बेर खाए थे। हमें भी वंचितों को, पिछड़ों को प्रेम देकर यह सार्थक करना होगा। हम सब हिंदू एक है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, हम सब सगे भाई है। हमारी माँ का नाम है जगत जननी भारत माता। हम भारत माँ के पूत हैं, हम भारत माता के पूत हैं। इसलिए भारत माता के सुहाग और सिंदूर की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे बंधुओं हमारे कंधों पर है। इसलिए ही राम जी ने हाथ में धनुष्य उठाकर कहा था, निशिचरहीन करहूं भूमि भूज धनुष्य उठाई। राम जी ने धनुष्य उठाकर संकल्प लिया, संपूर्ण पृथ्वी पर से राक्षसों का संहार करके फिर मैं विराम लूंगा, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। मेरे बंधुओं, हम किसी को कहे कि मुझे भगवत प्राप्ति के लिए जाना है। ज्यादातर इस देश में महापुरुष ऊपर की तरफ गए, उत्तर की तरफ गए, हिमालय की तरफ गए, लेकिन मेरा राम ही ऐसा था जो दक्षिण की तरफ गया और दक्षिण की तरफ जाकर के समाज को सुसंगठित किया और सुसंगठित समाज को साथ में लेकर के लंका पर विजय प्राप्त किया और सोने की लंका में भी कोई रुचि नहीं रखी। यह त्याग था राम का। मेरे बंधुओं, इसलिए मैं कहने आया हूं,
आज काफी समय से आप यात्रा में पैदल चले होंगे, थके होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, इस देश में हमारी एक भी बहन बेटी लव जिहाद का शिकार न बने, एक भी गौ माता कसाईयों के हाथ न लगे, एक भी मंदिर न टूटे। इस विषय में विश्व हिंदू परिषद कार्य करती है। विश्व हिंदू परिषद राम जी की कृपा से परम पूजनीय संतों के अस्तित्व संकल्प के कारण अस्तित्व में आई है। विश्व हिंदू परिषद ने गत 10 साल में 10,22,000 लोगों को वापिस हिंदू बनाने का काम किया है। गत 1 साल में 41,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटी जो लव जिहाद का शिकार बनी थी, उनको वापिस लाकर के स्वाभिमान युक्त बनाकर फिर से हिंदुओं के साथ विवाह कराने का काम किया है। 38,000 मेरी गौ माता को इन मुसलमानों के हाथ जाते हुए रोका है, बचाया है। मेरे बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 58 देशों में आज खड़ी है। 28 से ज्यादा देशों में जमीनी स्तर पर विश्व हिंदू परिषद का कार्य खड़ा है। इसलिए मैं कहने आया हूं, मेरे हिंदुओं, विश्व हिंदू परिषद किसकी परिषद? तो उत्तर है विश्व हिंदू परिषद। हम हिंदुओं के लिए हमारी अपनी खुद की अपनी परिषद है। मैं विश्व हिंदू परिषद का हूं, इसलिए मेरे हिंदू को खरोंच आई। मैं चुप नहीं बैठूंगा। सनातन धर्म लूटने के लिए कोई आएगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक भी बंधु का धर्मांतरण होगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे बंधुओं, अभी लग रहा है हम कितने साल तक लड़ेंगे, कितनी बहन बेटी बचाएंगे, कितनी गाय माता को बचा पाएंगे, कितने मंदिर बचा पाएंगे। आखिर इनका परमानेंट उकेल क्या है? तो इनका परमानेंट उकेल एक ही है। मैं इस देश की केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं, मैं अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं। कल तुमने वक्फ बिल यानी लैंड जिहाद की समस्या को जलाकर रख दिया। इस देश में यह लोग सपने देख रहे थे, हिंदुओं के लिए भूमि नहीं रहने देंगे। कोई मौलाना कह रहा था कि दिल्ली का संसद भवन भी वक्फ बोर्ड की भूमि है। कोई कह रहा था यह मंदिर हमारे वक्फ बोर्ड की भूमि है। अरे मियां, कल भी हम तेरे बाप थे और आज भी हम तेरे बाप हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी फिर से आओ, बढ़ के खड़े हो जाओ। संसद में सत्र बुलाओ, भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र घोषित करो।
कोई पूछेगा कि संवैधानिक हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा तो बेचारे वली भाई, करीम भाई, सलीम भाई, एंथोनी भाई, मोहम्मद भाई कहां जाएंगे? मुसलमानों का स्थान क्या रहेगा? तो मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों का स्थान होगा 0, कोई स्थान नहीं होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम 100 करोड़ हिंदू हैं आज इस देश में। मेरे बंधुओं, अभी भी वक्त है, हम जग जाए, संभल जाए, संकल्प के साथ खड़े होकर भरकर कहे जातिवाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर हम सब सनातनी हिंदू एक है, यह भाव भरते हुए जिस दिन इस देश का 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो गया तो हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, लेकिन दुनिया के नक्शे में से 24 घंटे में पाकिस्तान, बांग्लादेश का नामो निशान भी मिट जाएगा। मेरे बंधुओं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह देश हम हिंदुओं का है, यह देश मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है, मेरे ऋषि महर्षियों का है। यह देश में चलेगी तो मेरे राम की त्याग की परंपरा चलेगी। 6 साल की आयशा के साथ निकाह पढ़ते हुए आयशा जब 9 साल की होती है तब उनके साथ शारीरिक संबंध रखने वाले मक्का और मोहम्मद की परंपरा हमारी परंपरा नहीं है। मेरे बंधुओं, इसलिए मैं कहता हूं, हिंदुओं के लिए यह अंतिम प्रहर है। यह अंतिम प्रहर में हमने राम, कृष्ण, महाराणा शिवा का शौर्य नहीं दिखाया तो दुनिया के नक्शे में से हम खत्म हो जाएंगे। अगर हमने शौर्य दिखाया तो फिर से दुनिया के मालिक हम बनेंगे। तय करें हमारी आने वाली पीढ़ी को कहां ले जाना है। मेरे बंधुओं, इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया हमारी मुट्ठी में थी, कल हम ऐश्वर्यवान थे, कल हम सभी प्रकार से सुखी संपन्न थे। यह राम का देश वैभववान देश था। हमें किसने लूटा, हमें किसने मारा, हमें किसने काटा? कौन थे जिन्होंने भारत माता के सुहाग और सिंदूर लोच लोच कर भारत माता के बंटवारे किए? यह आता इस्लामिक शक्ति को हमें जानना होगा। इसलिए हम आज खड़े हो गए तो हमारा अस्तित्व बच पाएगा। जो व्यक्ति लड़ता है, संघर्ष करता है, वही विजयी भव बनता है, यशस्वी भव बनता है। इसलिए मेरे कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अर्जुन न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन, तू दीनहीन नहीं है, तू पलायनवादी मत बन। इसलिए मैं आज यहां कहने आया हूं, जैसर की भूमि पर कहने आया हूं, जैसर के मेरे हिंदुओं, हम पलायनवादी नहीं बनेंगे। हमें नहीं चाहिए पलायन, हमें तो चाहिए पराक्रम। हम पराक्रमवादी बनेंगे।
और पराक्रम दिखाते हुए दुनिया के मालिक कल थे, फिर से दुनिया के मालिक बनने के लिए आज संकल्पित होंगे। मेरे बंधुओं, जनगणना तब देखते हैं तब हार दिखाई देती है। मुसलमान कहते हैं हम 2 हमारे 8, और हम कहते हैं हम 2 हमारे 2.25, हम 2 हमारे 2.25, यानी 400% से भी ज्यादा इन कठमुल्लों की बस्ती आज हमसे ज्यादा बढ़ रही है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो 2030 में इस देश का मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, कोई नूर मोहम्मद बैठेगा। इसलिए जग जाओ, भटते हुए संवैधानिक हिंदू राष्ट्र का शंख फूको, और इस देश में हिंदुओं के 2 बच्चे तो वली करीम सलीम के भी 2 ही होंगे, 25 नहीं होंगे। टैक्स भरेगा हिंदू, 25 तुम पैदा करो, तुम्हारे बच्चों को पाल पोसने की जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं है। इस देश में हिंदू की 1 पत्नी होगी तो वली भाई की भी 4 बेगम नहीं होगी, 1 ही होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुओं खड़े हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, अपने शौर्य को दिखाओ। नरेंद्र भाई मोदी तो क्या, हम एक हो गए तो ममता बनर्जी भी राम नाम लेने लग जाएगी। इसलिए हम एक होकर भारत को फिर से वीर भारत, सोने की चिड़िया भारत, अखंड भारत, विश्व गुरु भारत, दुनिया का सिरमौर देश भारत बनाने के अभियान में लग जाए। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पुरखे भी इस राष्ट्र के हवन कुंड में आहूत हुए थे। राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः, हम भी यह हवन कुंड में आहूत होते रहेंगे। हम दिन 4 रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। यही बात को सार्थक करते हुए, आप सभी को धन्यवाद प्रदान करते हुए, आप सब धर्म भक्ति और राष्ट्र भक्ति को हृदय में यमन करते हुए अपना जीवन आगे चलाओगे, यही आशा के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। કે જેમાં આપણે જાગવાની જરૂર છે। અમારી ટીમ નાની છે પણ ઘણી ફળદાયી છે, ખૂબ જ કાર્યરત છે, અને એ ટીમને અમારા આ દરેક બજરંગીને હું ધર્મેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરું છું કે અમારા આ બજરંગીઓનું સન્માન આપના હાથે કરાવવું છે। દરેક બજરંગી લાખાભાઈ આહિર અને વિક્રમભાઈ વિપુલભાઈ આપ જોડાશો। એને મૂકવાની
ધર્મ જાગરણ સમન્વય ભાવનગર વિભાગ આયોજિત દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઊંચા કોટડા યાત્રાનું આયોજન કર્યું છે અને તારીખ બરાબર યાદ રાખજો મિત્રો, 10/4/2025 અને ગુરુવાર ચૈત્ર સુદ 13ના રોજ આ યાત્રા માટે જેસરથી વાહનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તો આપ સૌ ગ્રામજનો, ભાવિકજનો આમાં જોડાવા માટે જાહેર આમંત્રણ છે. માં ચામુંડા ઊંચા કોટડા આ યાત્રામાં